اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان، اس کا انعام، اس کی توفیق سے اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوبین اور مقربین بندوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس مبارک بعظمت، ببرکت، برحمت رحمت عالم کانفرنس و عرس سراپا قدس حضرت بندو شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے، گاؤں کے تمام سنی جیالوں نے اس مبارک و مسعود محفل نور کا انعقاد کیا۔ امام صاحب قبلہ، ان کے مقتدی، ان کے مصلیان، ان کے رفقا اور جو حضرات ممبئی سے آئے، جو گاؤں کے ہیں، ان سب نے اتنا شاندار انتظام، اہتمام، انصرام، ڈیکوریشن، لائٹ، سجاوٹ، مائک، علماء اور مشائخ کو دعوتیں، آخر کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد کہیں ظاہر ہوتا ہے، کہیں چھپا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ آخر یہ رحمت عالم کانفرنس کرنا اور اس سے سراپا قدس ایک اللہ کے ولی کا عرس منانا، کیا مقصد ہے، یہ کیوں؟ تو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے، بڑے غور سے گفتگو سنیں، جو آ رہا ہے آئے، جو جا رہا ہے وہ جائے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ آئے گا، وہ بیٹھے گا، وہ سنے گا۔ میں الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں خطاب کرتا تھا، اور اگر 10 آدمی تقریر سنیں تو اللہ کو رسول کی رضا کے لیے سناتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے بولنے کی، آپ کو توفیق دے سننے کی۔ بس اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے اور حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے، پالنہار نے، پروردگار نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ شکر ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، چرند پرند بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو چڑیا بنا دیتا، وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات بنا دیتا، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور عقل و شعور عطا فرمایا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی، جائز اور ناجائز کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، انسان بنایا۔ اور اس کا کرم دیکھو، دنیا میں کئی ارب، کئی خرب انسان پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جہاں ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، وہی مسلمان بنایا، وہی مسلمان بنایا۔ اور اگر میں آپ سے شیخ ڈی والوں اور اطراف و اکناف سے چل کر اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں اور کچھ یہاں سے لے کے جانے والوں، اس نیت سے بیٹھنے والوں، غور سے سنو، میں آپ سے مخاطب ہوں، خطیب سامعین سے مخاطب ہو، سامعین خطیب پر متوجہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ میں سے کسی نے دعا مانگی تھی، آپ کے باپ اور دادا اور پردادا نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے اپنے محبوب آخری نبی کی امت میں پیدا فرما؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، نہ میں نے دعا مانگی تھی، نہ میرے باپ نے، نہ دادا، نہ پردادا نے۔ لیکن یاد رکھو، اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں، ہم نے دعا نہیں مانگی تھی، لیکن اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء تمنائیں کر رہے ہیں، انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس رب تعالیٰ کا کرم بالائے کرم دیکھو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بغیر دعا مانگے اپنے محبوب آخری نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امت رسول بنایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اجمل سلطان پوری کہتے ہیں، گناہگار صحیح امت رسول تو ہے،
गुनाहगार सही उम्मत रसूल तो हैं, हजार कांटों की झुरमुट में धूल तो है, मेरी जमी तेरी जन्नत से कम नहीं रिजवान, यहाँ बहिश्त की जारोज़े रसूल तो है, यहाँ बहिश्त की जारोज़े रसूल तो है। तो अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, उम्मत रसूल बनाया। अच्छा, इंसान भी दुनिया में कई अरब खरब पाए जाते हैं, उम्मत रसूल में भी बहुत से लोग हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जहां में उम्मत रसूल बनाया खाली नहीं छोड़ा। अजीम दौलत, अजीम नेमत से सरफराज फरमा के, वो दौलत क्या है? दौलत ईमान, मुस्तफा का इश्क, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी, मुस्तफा जाने रहमत की वफादारी अता फरमा के हमें आशिक रसूल बनाया, मुस्तफा का जानिसार बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया, मुस्तफा का वफादार उम्मती और आशिक बनाया। तो जहां हम उम्मत रसूल हैं वहीं आशिक रसूल हैं, है ना? अच्छा, ये उसूली बात है कि जो मुद्दई होता है, दावा करता है, उसके पास दलील होती है। नबी से मोहब्बत करने का बहुत लोग दावा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, बोलो फख्र से, हम सब बरेलवी हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलील ये है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और नबी से मोहब्बत के साथ साथ नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, और नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, यानी अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और मुस्तफा के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। हम आले रसूल के भी वफादार हैं और सहाबी रसूल के भी वफादार हैं। आज अहले बैत के नाम पर सहाबाए किराम की शान में, बिलखुसूस कातिब वही साहबी रसूलुल्लाह सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी और तबर्रुबाजी हो रही है। खानकाहे कादरिया सरवर्दिया का ये खादिम मुल्क पर उन्हें मुल्क पे डंके की चोट पर बोलता है कि बरेलवी सैयद का ये पैगाम नोट किया जाए, हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं, और सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफिदी नहीं हैं, और इन दोनों को अपने सर का ताज बना के दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने सादाते राया शरीफ, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर सुन्नी हनफी बरेलवी नबी के दर का भी वफादार है, आले नबी के दर का भी वफादार है, हर सहाबी नबी के दर का वफादार है, और अल्लाह के हर वली के दर का वफादार होगा बेशक। समझ रहे? यही आला हजरत का तालीमात है, यही आला हजरत का पैगाम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आशिक रसूल बनाया, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी अता फरमाई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं, क्या उन नेमतों को कोई शुमार कर सकता है? उन नेमतों की कोई गिनती लगा सकता है? उन नेमतों को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है। ज़बरे कायनात फख्रे मौजूदात रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब मैं आपसे पूछूं शेखी वालों, इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस को मनाने और सजाने और इसमें आने वालों, अल्लाह जब कोई नेमत दे तो क्या करें? अल्लाह जब किसी नेमत से मालामाल फरमाए, किसी नेमत से सरफराज फरमाए तो क्या करें?
اللہ علم دے، عمل دے، تقویٰ دے، بزرگی دے، نسب دے، خاندان دے، دولت دے، عزت دے، شہرت دے، عظمت دے، مقام دے، منصب دے، عہدہ دے، مرتبہ دے، اچھی اولاد دے، تو کیا کریں؟ زمین دے، جائیداد دے، کھیتی باڑی دے، تمام باغات دے، باغیچے دے، تمام طرح کی نعمتیں اللہ کی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، چلنے کی، تمام نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جب اللہ کوئی نعمت دے تو کیا کریں؟ کیا اکڑ کے چلیں، تکبر کریں، انا کریں؟ انا میں تو فنا ہے. صوفیاء کرام فرماتے انا صرف اللہ کے لیے ہے. بیٹھنے کا حق ادا کرنا چاہیے. خالی بیٹھے سننے کا کام نہیں ہے. بولیے تو ساتھ میں بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جب کوئی نعمت دے تو کیا کریں؟ خاکساری کریں، انکساری، تواضع، ادب، مہمان نوازی، شفقت، محبت، جھکاؤ، لگاؤ. سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ اکڑ کے چلیں، زمین پر سلام نہ کریں، سلام کا جواب نہ دیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں انا چاہے حسب کا ہو، نسب کا ہو، خاندان کا ہو، علم کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، شہرت کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہو، انا بندے کو فنا کر کے چھوڑتا ہے، لیکن جو جھک جاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. بے شک ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان حضور بہار الہند، مسلک اعلی حضرت، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ہم آپ کو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں. آم کا پیڑ، اب اس وقت آم لگا بھی ہوا ہے پیڑوں میں. ڈال میں آپ دیکھیں جب پھل آتا ہے تو ڈال جھکنے لگتی ہے. وہ ڈال جھک کے بھی سبق دیتی ہے. کیا اللہ کوئی نعمت دے تو اکڑنا مت. بے شک جو جھک جاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. بے شک اور شکر ادا کرو گے تو اللہ اور دے گا. بے شک. شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم. سبحان اللہ. تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. بے شک ناشکری کرو گے تو نعمتیں ضائع ہو جائیں گی. تو اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرو. تو اب سب سے عظیم نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت دیا، اور اس لیے بھی سب سے عظیم نعمت ہے کیونکہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دیا کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا تب اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق سے اللہ نے مومنوں پر یہ احسان جتایا کہ اپنا رسول بھیجا، اپنا محبوب بھیجا، ہمیں رحمت عالم عطا فرمایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جتنی بھی نعمتیں سب مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہیں. بے شک مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا لولا کلمہ خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا. یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان پکار اٹھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سب سے عظیم نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو جب نعمت اللہ دے تو کیا کریں؟ خاکساری کریں، انکساری کریں، ہے نا، اور اس کا شکر ادا کریں. اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. آج ہمارے معاشرے میں ناشکری بہت پائی جاتی ہے. بے شک ہم لوگ خانقاہوں میں مسجد پر بیٹھتے ہیں، مریدین متقدین متوسلین آتے ہیں، جلسوں میں قیامگاہوں پر آتے ہیں، لوگ ملاقات کرتے ہیں، سلام کے بعد اپنی پریشانی شروع، اپنی بیماری شروع. جبکہ مومن کو چاہیے کہ سلام اور کلام کے بعد سب سے پہلا لفظ بولے اللہ تیرا شکر ہے.
سبحان اللہ ہر حال میں مولا تیرا شکر ہے. ارے اللہ کا یہ شکر ہے کہ تیری سانسیں چل رہی ہیں. جان سلامت, ایمان سلامت, عقیدہ سلامت, ماں باپ سلامت, بیوی سلامت, بچے سلامت, ملک سلامت, گاؤں سلامت. اللہ کا شکر ادا کر اور شکر ادا کرتا رہے گا, سلامتی پاتا جائے گا, سلامتی بندی بنی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. بہت تو سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت اور ساری نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. میرے امام نے فرما دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور جب سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو, ہمیں گنہگار نبی کے عاشقوں کو عطا فرمایا, مومنوں پر اللہ نے احسان جتایا. تو جب مصطفیٰ جان رحمت آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ساری خوشیاں ہمیں ملی, ساری نعمتیں ہمیں ملی, تو ہم کیا کریں؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتا, وہ قرآن جو رب کا کلام ہے, رب کا فرمان, اور اس قرآن کا خاصہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, جس کے ایک ایک حرف کا ماننا ایمان ہے اور کسی بھی حرف کا انکار کرنا کفر ہے. اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا دے. تو قرآن کا 30واں پارہ ہے, سورہ والضحیٰ ہے, آخری آیت ہے, رب کا فرمان ہے, اللہ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے بندے تو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. تو آج شیخی کے مسلمانوں نے رحمت عالم کانفرنس سجا کر کے مصطفیٰ جان رحمت عظیم نعمت کا چرچا اس انداز میں کیا, اعلیٰ حضرت کی سواری یوں کہہ دیا اور یوں کہتے رہیں گے کہ حشر کر ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھول, مثل فارغ کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے دو چل کر بنا ہم بے رضا, تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور حبیب ملت, فیضان حضور بہار الہند, فیضان حضور مختوم جلال الدین جہانیہ جہاں, فیضان اولیاء کرام, سلام اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. میرے سنی بھائیوں, الحمدللہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں اور در والوں کے غلام ہیں, مومن ہیں, عاشق رسول ہیں. تو ہمارے اور تمہارے اوپر ہی نماز فرض ہے. بے شک نماز کی پابندی کرو, پنجگانہ نماز پڑھو اور سنی امام کی طرح میں نماز پڑھو. بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیوں میں محبت پیدا کرو. چھوٹا ہے تو بڑے کا احترام کرے, بڑا ہے تو چھوٹے پہ شفقت کرے, ہے نا. اور روزے رکھا کرو. اتنا مبارک مہینہ اللہ عطا فرماتا ہے, 3 عشرے ہیں, 5 شب قدر ہیں, نیکیاں جمع کرنے کے لیے اللہ موقع دیتا ہے. آج ہمارے بھائی ہیں, اچھی صحت ہے, لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر حقیقت میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, تو میری امت تمنا کرے کہ پورے سال رمضان ہو. لیکن تب بھی کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, سب گنہگار ہوتے ہیں. اور اس میں بھی کچھ ایسے ڈھیل ہیں جو روزہ نہیں بھی رکھتے اور روزے داروں کا رمضان کا احترام نہیں کرتے. لیکن جب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور کسی بیماری اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے, پھر اولیاء کرام کا در یاد آتا ہے. میرے بھائیوں, تم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو. میں انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں جب تم سب کے حق ادا کرو گے, حقوق اللہ حقوق العباد بھی, انشاءاللہ بیماری, مصیبت, ناگانی, تمام بلائیں وبائیں تم سے دور رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے مال و دولت انعام دیا تو حج کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اور تم علماء مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہو, احسان نہیں کرتے ہو. یہ تو احسان علماء کا ہے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے, تم جا کے مستحق تک پہنچاؤ. یہ تو احسان ان کا ہے کہ یہ تو تمہاری زکوٰۃ کو لینے خود تمہارے دروازے پر آ کے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے گاؤں میں, رشتے دار میں, خاندان میں جن کو کوئی بیوہ ہو, یتیم ہو, مظلوم ہو, پریشان ہو, اس کی مدد کرو. سمجھ رہے, اس کی دعائیں لو. آج کے اس دور پرفتن میں یاد رکھنا, کوئی خاندان ہو, برادری ہو, سماج ہو, گاؤں ہو, قصبہ ہو, نگر ہو, شہر ہو,
हर जगह पर हसद है, बेशक समझ रहे, बुग़्ज़ है, कीड़ा है, नफरतें हैं, कुदूरतें हैं। घर में भाई भाई से नहीं बन रही है, चचा भतीजे में नहीं बन रही, मामू भांजे में नहीं बन रही। क्या वजह? सिर्फ हसद है। इसकी इज्जत कैसे हो रही है, इसकी शोहरत कैसे हो रही है, इसका मकाम कैसे बन रहा है, इसकी बिल्डिंग कैसे बन रही है, इसके घर गाड़ी कैसे आ रही है, इसकी कमाई कैसे हो रही है। क्यों अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो? अल्लाह दे रहा है, तुम क्यों जल रहे हो? बेशक तुम उससे नहीं चल रहे हो, बल्कि अल्लाह दे रहा है, तुम अल्लाह की नेमतों से चलकर अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो। बेशक मैं तुमको पैगाम देता हूँ, जब किसी अपने भाई की खुशी देखा करो, खुश हुआ करो और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करके दुआ किया करो, ए अल्लाह तूने बड़ा बंदे को, मेरे बड़ा भाई को इस नेमत से सरफराज फरमाया है, मौला मुझे भी अता फरमा दे। इंशाअल्लाह तुम्हें उससे दुआ खुशी नेमत अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त, नारे रिसालत। सुभान। लेकिन अपने अंदर से कुदरतों को निकालो, हसद को निकालो। ये हसद कभी इंसान को पढ़ने नहीं देता, तरक्की और कामयाबी होने नहीं देता, बल्कि जो हासिद होता है वो अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारता है, हासिद चल चल के मर जाता है, लेकिन जिससे चलता है अल्लाह उसको रूज अता फरमाता है। क्योंकि इज्जत कोई दुनियादार नहीं देता है, परवरदिगार देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे वो जलील कर दे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। बेशक समझ रहे? तो आज के दौरे पुरफतन में दुआएं नहीं मिलती, और दुआ कैसे मिलती है? अदब और खिदमत से। बेशक और एक चीज और बता दूं, एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना। बेशक यूं समझो कि मैं आपके गांव में पहली बार आया और आपकी खुशनसीबी है कि हुजूर वालिद गिरामी की आमद हुई, बेशक जिनकी इब्तिदा में खुतबे वक्त मुजद्दिदे वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म आलम ने नमाज पढ़ी है। बेशक सुभान बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। तो अब मैं आया, आपका हुजूर आए, सादाते किराम ये उलमा नाइबीन मुस्तफा आपके गांव में आए। अब एक है कि आप आए और मुझसे दुआ कराएं, और एक ये है कि मैं आया हूं और आपने वो अखलाक, वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो मेहमान नवाजी, वो अदब पेश किया कि मेरा दिल इतना बागबाग आपके अखलाक और मोहब्बत और खुलूस से खुश हो गया कि आपने दुआ के लिए भी कहा नहीं, आपसे दिल इतना खुश हो गया कि दुआ खुद ब खुद दिल से आपके लिए निकल रही है। तो ये दुआ लेना होता है। बेशक तो एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना। तो इस दौर में दुआएं नहीं मिलती, दुआ मिलती है तो खिदमत से। तो खिदमत किसकी करना है? माँ बाप की। किसकी करना है? माँ बाप की। माँ बाप की। पीर का हाथ बाद में चूमो, माँ का कदम पहले चूमो। सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरे नाना जान का फरमान है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, अपने माँ बाप की कद्र किया करो। जो माँ बाप की इज्जत और कद्र करता है, माँ बाप की दुआएं लेता है, वो हमेशा खुशहाल और चमकता रहता है। समझ रहे? और अपने इमाम की इज्जत किया करो, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उनकी खिदमत किया करो, उनका ख्याल रखा करो। समझ रहे? आप जानते हो, कहते हो पीछे से इमाम के, लेकिन बड़ा अलमिया है हमारे कौम का कि मस्जिद के अंदर जाएं तो कहें पीछे से इमाम के, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो पड़ जाए पीछे इमाम के। ये जहालत को दूर करो। जब तक तुम इज्जत नहीं करोगे, इज्जत नहीं मिलेगी। कद्र करना सीखोगे, कद्र मंजिल तुम्हें तय होती चली जाएगी। समझ रहे? अदब करोगे, अदब मिलेगा, इज्जत करोगे, इज्जत मिलेगी। समझ रहे? और अपने खानदान में अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत किया करो। मेरे आका फरमाते हैं, जो बूढ़ों की इज्जत करता है, बूढ़ों से मोहब्बत करता है, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद बूढ़ा नहीं हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो बूढ़ा माँ बाप की सूरत में हो, चचा हो, फुप्पा हो, खालू हो, मामू हो, समझ रहे? महल्ले का हो, गांव का हो, मोमिन हो, सुन्नी से अकीदा हो, समझ रहे? बूढ़ा है तो उसका एहतराम करो, और अगर तुम बूढ़े हो तो
अपने बच्चों पे शफकत का हाथ रखो ताकि वो तुम्हें देख कर सलाम करने में पहल करें। सुभान अल्लाह। और खुद सलाम कर लिया करो, ये भी आका की सुन्नत है। मेरे आका बच्चों को सलाम करते थे। सहाबा अर्ज करते, या रसूलुल्लाह आप बच्चों को सलाम करते हैं। आका फरमाते, मेरे सहाबा इसलिए बच्चों को सलाम करता हूं ताकि बच्चों को सलाम करने की आदत पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप ये चाहते हो कि ये छोटा है मुझसे सलाम करे, एक दिन आप पहले बड़े होकर सलाम में पहल करो, फिर देखो छोटा पलट के अगले दिन आपको सलाम में पहल करता है कि नहीं करता। समझ रहे हैं? और मेरे भाइयों, अपने अंदर से जिहालत को खत्म करो, अपने अंदर दीनदारी लाओ, दीनी जज्बा लाओ, और उलमा की सोहबतों में बैठो, दीनी किताबों का मुताला करो, और आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ा करो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा करो। समझ रहे हैं? आला हजरत अज़ीमुल बरकत का तर्जुमा कंजुल ईमान जो आपने तर्जुमा फरमाया, क्या ईमान का खजाना। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, और रब जो फरमा रहा है आपको ये भी कुरान में समझ में आएगा कि रब क्या फरमा रहा है। समझ रहे हैं? तो कुरान पढ़ो और कसरत के साथ कुरान पढ़ा करो। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये कुरान भी शफाअत करेगा। कुरान कसरत से पढ़ा करो, और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, कॉलेज में मत पढ़ाइए, यूनिवर्सिटियों में न पढ़ाइए, MBBS IAS PCS न बनाइए, डॉक्टर न बनाइए, प्रोफेसर न बनाइए, लेक्चरार न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, वकील न बनाइए, लेकिन सबसे पहले उन्हें इंसान बनाइए, मुअद्दब बनाइए, मुअद्दब बनाइए। अब तालीम कितनी हासिल कर लें, अगर तरबियत नहीं तो बेकार है। समझ रहे हैं? पढ़ लिख के बहुत आ गए और अदब का नर्स नहीं आया, सलाम में पहल नहीं आई, घमंड गुरूर है, इल्म का कर्रा है, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो अदब न सिखाए। समझ रहे? बाअदब बनसीब, बेअदब बेनसीब। समझ रहे? और एक पैगाम जो और अहम है, ये सारे पैगाम नोट करिए, इस पर अमल कीजिए, मैं इमाम साहब से पूछूंगा। समझ रहे? और एक पैगाम और जो इस वक्त पूरे मुल्क में मैं दे रहा हूं, वो ये है कि खुदारा अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाइए। अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाइए। और ये कैसे होगा? जब आप उनको दीन सिखाएंगे, दीन पढ़ाएंगे, दीन की तालीम देंगे, पर्दे की तालीम देंगे। समझ रहे हैं? और उनके हाथों में कुरान होगा, उनके हाथों में कलम होगा, और दीन की तालीम से आरास्ता होगी। आज कितना बड़ा अलमिया है, अफसोस का मकाम है कि कनीज़े फातिमा है, लेकिन आज ना इल्मी की बुनियाद पर, दीन से दूरी की बुनियाद पर वो गैरों के हाथ पे जाके अपने ईमान और इज्जत का सौदा कर रही है। शर्म का मकाम है, निगाहें झुक जाती हैं जब कोई वाकया पढ़ता हूं। अफसोस का मकाम है। मेरे भाइयों, अपने बच्चियों को और नाबालिग लड़कियों के हाथों में मोबाइल देना बंद करो। नाबालिग लड़कियों के हाथ में, गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल देना बंद करो। इस मोबाइल से माशरा बहुत तबाह होता जा रहा है, और आज हमारे माशरे के अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं, अगर उन सारी बुराइयों को जमा किया जाए तो एक किताब बन के तैयार हो सकती है। समझ रहे? ये हमारी कौम किधर जा रही है। तो मुसलमान हो, नबी की उम्मती हो। एक गैर मजहब में इतनी चुभती हुई बात कही थी, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसने कहा लगता आज किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर नहीं हुआ। अगर किसी मुसलमान का गुजर होता तो ये पत्थर रास्ते में नजर नहीं आता, क्योंकि मुसलमानों के नबी, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि रास्ते में अगर तकलीफें चीज पड़ी हो, कांटे पड़े हो, तो रास्ते से हटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई गुजरे तो उसके पैरों में तकलीफ पहुंच जाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, और अपने भाइयों के लिए कांटे बने हुए हैं। आज ये बदआमालियों का नतीजा है जो दिन ये देखने को मिल रहे हैं। आज जो आप परेशानियों से दो चार हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतों में हैं, तंदरुस्तियों में हैं, खुशहालियां नहीं है, उसकी वजह ये बदआमालियां हैं। तो अपने अंदर से बदआमालियों को दूर करो, जहालत को दूर करो, तारीकी को दूर करो। इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। तालीम से आरास्ता हो, तालीम से नस्लन बाला नस्लन, खानदान का नाम हो, वहां ऊंचा बुलंद बाला रहे। समझ रहे? तो
तालीम हासिल करो और जो दरमुंडे हैं अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजाएं। हम लोग सफर करते हैं, अल्लाह की कसम, कभी एयरपोर्ट पर हैं, फ्लाइट पे हैं, ट्रेन पे हैं और सोच रहे हैं कि कोई अपना भाई नजर आए तो किसी से पानी मंगा लें, किसी से कुछ मंगा लें। कभी खादिम नहीं है, अकेले हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि कौन, न दाढ़ी है, न टोपी है, न इस्लामी लिबास है, कैसे पहचान होगी मुसलमान है। हम पहचान अपनी खोते हुए जा रहे हैं और नाम भी ऐसे रखते हैं, गुड्डू, पप्पू, बबलू, सोनू, पता नहीं इधर का है कि उधर का है। मुसलमानों, ये हंसने की चीज नहीं है। ये जलसे, ये हजारों लाखों रुपए के आपने खर्च किए, मैं ऐसे नहीं अपना पसीना बहा रहा हूं, समझ रहे हैं? ये दर्द बयान कर रहा हूं, दर्द, ये दर्द बयान कर रहा हूं, उसको आप नोट करें। और मेरे रब पर, अल्हम्दुलिल्लाह, रब पर मुझे ये उम्मीद है, इस गुनहगार को, अगर मेरी इन बातों को मेरे एक भाई ने भी अमल कर लिया तो मेरा आज के जश्न में आना कबूल हो जाएगा। अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, अल्लाह की कसम। अगर कब्र में जाओगे, आका ने चेहरा फेर लिया तो मैशर में शफाअत कौन कराएगा? मैं भुसावल में तकरीर कर रहा था, आपके ये गुलरिया में तकरीर कर रहा था, सिद्धार्थ नगर इटवा के पास। जी हुजूर मौजूद था, आप मौजूद थे। और अभी मैं 9 तारीख को भी इटवा के पास एक जलसे में था और तमाम जलसों की बात है, तो जलसे की नहीं, अल्लाह का शुक्र है से नेमत के तौर पर न जाने कितने नौजवान बच्चे आए, गैर शादीशुदा भी आए, बोले हजरत मरना तो है एक दिन, मौत को बारा पे मौत आना है और न साथ माँ जाएगी, न बाप, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न बाप, कब्र में अकेले जाना है। और मुस्तफा कब्र में आएंगे, कैसे उनको चेहरा दिखाएंगे? आपको गवाह बनाते हैं, इस मिंबर रसूल को, आले रसूल और नाइब रसूल को गवाह बनाते हैं और ऐद करते हैं, कल से अस्तूरा नहीं लगवाएंगे और इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजा लेंगे। कि आज के इस जलसे में कोई भाई ऐसा है जो मुझ गुनहगार को, हुजूर हबीब मिल्लत वालिद बुजुर्गवार को, सादात किराम उलमाए सुन्नत को गवाह बना के इस महफिल को उठे और आज कर ले कि इंशाअल्लाह कल से सूरज नहीं लगाएंगे और दाढ़ी रख लेंगे, अल्लाह के नूर को चेहरे पर सजाएंगे। जो अंबिया की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, तबा ताबईन की सुन्नत है, अइम्मा मुज्तहिदीन की सुन्नत है, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, फारूक आज़म की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, इमाम हसन की सुन्नत है, इमाम हुसैन की सुन्नत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, इमाम बाकर की सुन्नत है, इमाम जाफर सादिक की सुन्नत है, मूसा कासिम की सुन्नत है, अली रज़ा की सुन्नत है, इमाम आज़म की सुन्नत है, इमाम शाफ़ई की सुन्नत है, इमाम हम्बल की सुन्नत है, इमाम मालिक की सुन्नत है, गौसे आज़म की सुन्नत है, दाता गरीब नवाज की सुन्नत है, जुनैद बगदादी की सुन्नत है, सुन्नी सख्ती की सुन्नत है, अबू हसन करखानी की सुन्नत है, मारूफ तर्की की सुन्नत है, अहमद कबीर रफ़ाई की सुन्नत है, सुल्तान बाहू की सुन्नत है, हबीब आजमी की सुन्नत है, हसन बसरी की सुन्नत है, वैसे कमली की सुन्नत है, बिलाल हबशी की सुन्नत है, और आगे बढ़ो, मखतूम माहिनी की सुन्नत है, मखतूम जहांगा जहांगस की सुन्नत है, मखतूम अलाउल्लाह नबी की सुन्नत है, मखतूम शरफुद्दीन अमोनी की सुन्नत है, मखतूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी की सुन्नत है, मखतूम शामीना लखनवी की सुन्नत है, मखतूम शाहला की सुन्नत है, बख्तार काकी की सुन्नत है, निजामुद्दीन की सुन्नत है, कुतुबुद्दीन की सुन्नत है, अलाउद्दीन की सुन्नत है, वारिस पाक की सुन्नत है, साबिर पाक की सुन्नत है, सैयद सालार की सुन्नत है, आला हजरत की सुन्नत है, मुफ्ती आजम की सुन्नत है, ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने हुजूर बहारुल हिंद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान खड़ा हो जाए, खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ जल्दी, खड़े हो जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सरताज आ जाओ। सरताज, ये जो तुम दाढ़ी रखते हो, ये दाढ़ी में शुमार नहीं है बाबू, इधर आओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह। और कोई है भैया? आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, अपना किरदार अच्छा बनाओ,
मैं तो अक्सर अपने मुरीदों से कहता हूं कि ऐसे मुरीद बनो कि तुमसे तुम्हारा पीर पहचाना, सुभान अल्लाह, ऐसे शागिर्द बनो कि तुमसे तुम्हारा उस्ताद पहचाना जाए, ऐसे मुक्तदी बनो कि तुमसे तुम्हारा इमाम पहचाना जाए, और ऐसी औलाद बनो कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप पहचाने जाए। अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, तब्दीली पैदा करो। तुम जिस राह से गुजरो तो गैर कहे कि उम्मत रसूल जा रहा है, नबी का उम्मती जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, इस्लाम का फॉलोवर जा रहा है, गौसे आजम का गुलाम जा रहा है, गरीब नवाज का वफादार जा रहा है, नस्ल के आला हजरत पे चलने वाला सुन्नी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करो, तब्दीली पैदा करो। मैं रात भर तकरीर करता रहूं और आप अगर अमल न करें तो क्या मतलब है ना? बातें पूरी रात हो और अमल ना हो तो बेकार है। और मेरे असलाफ, मेरे अजदाद अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे वो पहले करते थे, तब उनकी जबानों में असर होता था। मेरे आका गौस पाक की बारगाह में खातून आई, क्योंकि ये उर्स भी बुजुर्ग का है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उर्स खूब मनाओ, लेकिन शरीयत का ख्याल करो। शरीयत मुकद्दम है तरीकत पर, समझ रहे हैं? अल्लाह का हर वली, हर पीर मुत्तबे शरा होता है, वो पीर नहीं जो मुत्तबे शरा ना हो। पेश है सरकार गौस पाक की बारगाह में खातून आई, बच्चे को साथ लाई, हुजूर ये मेरा बेटा है, मीठा बहुत खाता है, कुछ नसीहत कर दीजिए। गौस पाक ने फरमाया खातून जाओ कल आना। बुजुर्गों को आजमाया नहीं जाता वरना आदमी आजमाइश में पहुंच जाता है, अकल नहीं लगाई जाती, जाओ कल आना। दूसरे दिन फिर खातून आई, कहा हुजूर ये बेटा मेरा मीठा बहुत खाता है, कुछ नसीहत कर दीजिए। सरकार गौस पाक ने शफकत का हाथ रखा, फरमाया बेटा मीठा कम खाया करो। कहा खातून ले जाओ। उस खातून ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आले रसूल हैं, गुस्ताखी माफ हो। हुजूर आपको इतनी सी बात कहना थी तो कल क्यों नहीं फरमाया, कल क्यों नसीहत नहीं किया, एक दिन बाद बुला के नसीहत किया? तो मेरे आका गौस पाक फरमाते खातून सुन, बात यह है कि मीठा अब्दुल कादरी बहुत खाता है, कल से मैंने परहेज शुरू किया है, इसलिए आज बच्चे को बुला के नसीहत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो आप किसी को देख के बदलने की कोशिश न करें, बल्कि हर शख्स अपने लिए तस्वूर करे कि हम जब अच्छे हो जाएंगे, हम नेक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हमको देख के हमारे भाई नेक हो जाएंगे। समझ रहे? तो जो अच्छा होता है वो अच्छी सोच रखता है, अच्छा जहन रखता है, अच्छा ख्याल रखता है, अच्छी फिक्र रखता है। ये अच्छों की पहचान, ये सच्चों की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं, क्योंकि अच्छे और सच्चे नबी के उम्मती हैं, अच्छे और सच्चे अल्लाह वालों के गुलाम है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आजम, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौस आजम, ख्वाजा दिया ख्वाजा आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, और मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते पाले इनके, काश महजब भी रख करते हवाले इनके। तुझको बनना है जब फख्र सलातीन जहां, दौड़ के तू ठाले सर पे नाले इनके। दीन अकबर को जिसने फरा कर दिया, उस मुजद्दिद कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब राहते कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। खड़े हो जाएं, इसको